মানসে করহনীয় ক্রমবিধি অনুসরি রচনা মানসে করহনীয় ক্রমে ব্রজে করিবা রূপানুভব হইয়া স্মরণ কীর্তন কর ব্রজে করিবা রূপান স্মরণ কীর্তন কর ব্রজে করিবা শ্রাগানুগাব হইয়া স্মরণ কীর্তন কর ব্রজে শ্রাগানুগাব হইয়া স্মরণ কীর্তন কর নিখিল কাল করো যাপন নিখিল করো যাপন নিখিল কাল করো যাপন নিখিল কাল উপদেশ সার ধর উপদেশ সার নিখিল কাল করো যাপন উপদেশ সার ধর নিখিল কাল অরূপ গোসাই দয়া করি কবে অরূপ গোসাই দয়া করি কবে দিবে দিনে ব্রজবাসা অরূপ গোসাই দয়া করি কবে দিবে দিনে ব্রজবাসা অরূপ গোসাই দয়া করি কবে দিবে দিনে ব্রজবাসা অরূপ গোসাই দয়া করি কবে ব্রজবাসা রাগাত্মিক তুমি সব পদানুগা রাগাত্মিক তুমি রাগাত্মিকা তুমি তব পদানুগা রাগাত্মিকা হইতে দাসের আশা হইতে দাসের আশা রাগাত্মিক তুমি তব পদানুগা হইতে দাসের আশা রাগাত্মিকা হইতে দাসের আশা হরি হে শ্রীরূপ গোসাই গুরু রূপেতে শিক্ষা দিলাম প্রাণে হরি হে শ্রীরূপ গোসাই শ্রীরূপ শিক্ষা দিলাম হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে রাম হরে রাম Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Gauranga, Hare Jai Sachidananda Gaura Hari, Jai Sachidananda Gaura, Jai Sachidananda Gaura Hari, Jai Radha Govinda Radha Govinda Radhe, Radha Govinda Radha Govinda Jagannatha, Jagannatha, Vasudeva, Jaya Subhadra, Jagannatha, Jagannatha, Vasudeva, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Gurudev, 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 Jai Gurudev, Jai Gurudev, Gurudev, Gurudev. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Bol Hari Bol, Bol Hari Bol. Gaur Premanande, Shri Ram Sankirtan ki Jai, उपदेशामृत की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, ताहि गौर प्रेमानंदे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति
श्रीवाचालं कुङ्कुमं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। तो सभी ऑफलाइन डिवोटीज को स्वागत करते हैं। विशेष करके हम लोग स्वागत करते हैं हमारे प्रभु जी का। प्रभु जी का नाम इष्टदेव गोपाल प्रभु। तो अभी वर्किंग है, जॉब कर रहे हैं और हमारे दुर्गापुर भाई से पास आउट हैं, तो हम लोग उनको स्वागत करते हैं 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और जितने भी ऑनलाइन डिवोटीज हैं, ऑनलाइन डिवोटीज, ओके, ऑनलाइन डिवोटीज का अटेंडेंस सुप्रतीक प्रभु लेने वाले थे, लेकिन सुप्रतीक प्रभु शायद आज भक्ति पुरुषोत्तम महाराज का क्लास चल रहा है उधर दीघा के पास, तो शायद वो अटेंड कर रहे हैं उनके फैमिली के साथ। तो कृतिका माता जी कैन टेक द अटेंडेंस ऑफ ऑल द डिवोटीज। यस प्रभु, प्रभु को भेज दीजिए। ओके प्रभु। तो आप लोग थोड़ा सा अटेंडेंस दे दीजिए। अभिषेक प्रभु, अमित प्रभु, अंतरा माता जी रेस्पॉन्स करिएगा। कृतिका माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रियंका माता जी, प्रभु संचरी माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण प्रभु, हरे कृष्णा संजय प्रभु, संजय नित्यानंद प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। কেমন আছে আপনার বাবা? এখন বাবা একটু বেটার আছে প্রভুজি, মানে নিয়ে আসা যায়নি, অপারেশন হলো, পেসমেকার বসেছে, এখন বম্বেতেই বোনের কাছে আছে, মানে এখন ডাক্তার আসতে বারণ করেছে আর কি, জার্নি করতে এখন বারণ। নিশিনাদেব ভগবান কি জয়। ওকে, নিশিনাদেব ভগবানের কৃপা। হ্যাঁ প্রভুজি, আমি পুজো দিয়েছিলাম যেমনি আপনি বলেছিলেন 21 ডেজের, আমি ওখানে পুজো দিয়েছিলাম। আপনাকে আপনার বাবাকে ভক্তিতে নিয়ে আসতে হবে। হ্যাঁ, তো এখন ভক্তি হৃদয়ে প্রদান করতে হবে। संजय नित्यानंद को वेलकम फ्रॉम वृंदावन धाम। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। हरि बोल, धन्यवाद प्रणाम। ओके, सन्मय प्रभु, सौरभ प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी। वरुण प्रभु, कुमकुम माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी। आप सबको स्वागत है। ओके, अभिषेक, अमित है? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। हरि बोल। अभिषेक कहाँ है? हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, हरि बोल। ओके, वी स्टार्ट। तो हम लोग उपदेशामृत के 8 नंबर श्लोक में हैं। तो 8 नंबर श्लोक के ऊपर ऑलरेडी 2 क्लास हो चुका है, तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। थोड़ा एक वाला पार्ट बचा हुआ था, तो उसको जस्ट हम आज कवर कर देंगे। ओके, फिर अगले वीक में हम लोग श्लोक नंबर 9 शुरू करेंगे। तो हमने पहले ही चर्चा कर चुके हैं। अब सबको समझ में आ रहा है हिंदी? तो क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है और इसका जो चर्चा का विषय भी जो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो पिछले जो हम लोग चर्चा किए वो याद नहीं रखेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो श्लोक एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं। आप सब लोग मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं। कृतिका मध्य स्लाइड प्रेजेंट कर सकते हैं। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत क्रमेण रसना मनसि निजज्जो तिष्ठन् व्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालं नयेत् अखिलात् इति उपदेशसारम्। तो इसका अनुवाद मैं बांग्ला में पढ़ रहा हूँ। সমগ্র উপদেশ সমূহের সারাংশ হলো এই যে প্রত্যেকের শ্রী ভগবানের দিব্য নাম, রূপ, গুণ, লীলা আদি উত্তম রূপে নিরন্তর কীর্তন এবং স্মরণ করে সময়ের সদ্ব্যবহার করা উচিত। এই উপায়ে মন ও জিহ্বা ক্রমে ক্রমে ভগবত সেবায় নিয়োজিত হবে। এইভাবে ব্রজধামে গোলক বৃন্দাবন ধাম
বাস পূর্বক কৃষ্ণ ভক্তের আনুগত্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা উচিত এবং ভগবানের ভক্তি সেবায় নিমগ্ন তার প্রিয় ভক্তের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলা উচিত। तो इस श्लोक में मुख्यतः 3 चीज कहा गया है जो हम लोग पहले भी चर्चा किए हैं। तो पहला है कि हमारे आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए आध्यात्मिक मार्ग में आध्यात्मिक अनुशीलन में मन के बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो अगर मन हमारे नियुक्त नहीं रहता है भगवान की सेवा में तो वो मन आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति के बाधक बनते हैं। मन ही एक व्यक्ति के शत्रु है या बंधन का कारण है और मन ही एक व्यक्ति का मुक्ति का कारण बन सकता है। गीता में भगवान कहते हैं। तो इसलिए उपदेशामृत के सार है, सारे उपदेशों का सार है कि हमारे मन को नियुक्त रखना चाहिए। कैसे नियुक्त रखना चाहिए? मन और जीवा को। मन और जीवा सबसे महत्वपूर्ण इंद्रिया है। सारे इंद्रियों के जो स्वामी हैं वो है मन। और इंद्रियों में सबसे जो क्या कहते हैं, सबसे शक्तिशाली इंद्रियां हैं जिसको नियंत्रण करना सबसे कठिन है, वो है जीवा। तो इस जीवा और मन को हमें भगवान की दिव्य नाम, रूप और चरित्र उसको कीर्तन करने में नियुक्त रखना चाहिए और इस प्रकार हमारे समय का सद्व्यवहार करना चाहिए। तो कृष्ण नाम रूप गुण सुचरित परम जतन करी रसना मानसे करह नियोग क्रम वृद्धि अनुसरी। भक्तिविनोद ठाकुर इस भजन में, उसी सॉन्ग के भजन में बोल रहे हैं। तो कृष्ण नाम रूप गुण और चरित्र लीला परम जतन करी, बहुत जत्न के साथ स्मृत्ते क्रमेण रसना मनसी निजोज्य। रसना मतलब जीवा, मनसी मतलब मन, निजोज्य नियुक्त करना चाहिए। तो भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला आदि में कीर्तन में नियुक्त करना चाहिए। तो ये पहला उपदेश के जो सार, उसमें पहले जो पॉइंट है वो रूप गोस्वामी पाद बता रहे। दूसरा पॉइंट है कहां पर भजन करना चाहिए, कहां पर हमें भक्ति करना चाहिए। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। रूप गोस्वामी पाद इधर बता रहे हैं तिष्ठन ब्रजे तदनुरागी जनानुगामी। तिष्ठन ब्रजे, ब्रज में रहना चाहिए। तो ब्रजे कोरी बास रागानुगा होइया स्मरण कीर्तन करो एनिखिल काल करो जापन उपदेश सार धरो। ये उपदेश की सार है। तो ब्रज में वास करना चाहिए। और तीसरा उपदेश क्या है? तीसरा उपदेश क्या है? तिष्ठन ब्रजे तद अनुरागी जनानुगामी। और भगवान के जो अनुरक्त भक्त हैं, रागानुगा या रागात्मिका भक्त है, भगवान जो पार्षद है, उनके पद चिन्हों पे चलना चाहिए। ये तीसरी उपदेश है। समझ में आ रहा है? तो 3 उपदेश है। एक है मन और जीवा को भगवान के नाम, रूप, गुण, चरित्र कीर्तन में हमेशा नियुक्त करना चाहिए। दूसरा उपदेश कहां पर भजन करना चाहिए? ब्रज में। उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ब्रज में वास करने के उद्देश्य क्या है। ब्रज में वास करने के उद्देश्य क्या है? कि हम लोग और तीव्रता से भगवान के भक्ति में नियुक्त रहे। ये ब्रज में वास करने के उद्देश्य है।
कि हमें ऐसे स्थान में रहना चाहिए जो आध्यात्मिक प्रगति के अनुकूल है। तो तो जिस स्थान में हम लोग श्रवण कीर्तन और भगवान की सेवा में ज्यादा से ज्यादा नियुक्त हो सकते हैं, बहुत अच्छे से नियुक्त हो सकते हैं, तो इसलिए हमें ऐसा स्थान चुनना चाहिए कि जहां आध्यात्मिक प्रगति के अनुकूल है। तो श्रील प्रभुपाद जी सभी भक्तों के लिए उन्होंने वृंदावन को विस्तार किया है। श्रील प्रभुपाद सभी पृथ्वी के भक्तों के लिए उन्होंने वृंदावन धाम को विस्तार किया है, इस्कॉन के द्वारा या इस्कॉन मंदिरों के द्वारा या वॉइस के द्वारा। तो सबको फिजिकली वृंदावन रहना संभव नहीं है, लेकिन वृंदावन में रहकर जो हम लोग आध्यात्मिक अनुशीलन या जो उपदेशामृत में जो रूप गोस्वामी पाद जो बता रहे हैं, जो वृंदावन में वास करने के जो उद्देश्य हैं वो हम सभी लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी वो सुविधा हम सभी लोगों के लिए दिया है। तो इस प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बता रहे हैं कि जो कनिष्ठ भक्त हैं उनको वृंदावन जाके वास नहीं करना चाहिए। शुरू में उनको साधना भक्ति का अनुशीलन करना चाहिए। साधना भक्ति का अनुशीलन करके जब वो अनर्थ निवृत्ति लेवल क्रॉस कर जाएगा, आपने सुना है भक्ति के 9 स्तर हैं, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। तो जब अनर्थ निवृत्ति लेवल क्रॉस करके निष्ठा, रुचि, आसक्ति, उस समय कोई ब्रज में जाकर रह सकता है। समझ में आ रहा है? नहीं तो ब्रज में और भी बहुत लोग रहते हैं। ब्रज में बहुत क्या कहते हैं उसको, अलग बंदर, सुअर, वो लोग भी रहते हैं, और बहुत प्रकार के सहजिया लोग भी रहते हैं जो बहुत परमहंस भक्त का वेश पहने हुए रहते हैं, लेकिन भगवान के भक्ति में, भगवान की कथा, नाम, रूप, गुण, लीला, कीर्तन में वो लोग निमग्न नहीं होते हैं। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायीगण या श्रील प्रभुपाद जी के अनुयायीगण जब ब्रज में जाते हैं तो भक्तों के संग में जाते हैं। गौर अमार शेषव स्थाने करिल भ्रमण रंगे शेषव स्थान हेरिब आमी प्रणय भगवती संगे। तो वृंदावन जो है बहुत बहुत उच्च कोटि का स्थान है। वृंदावन माधुर्य धाम है। तो उधर आप भक्ति करेंगे तो 1000 गुना ज्यादा फल होगा, अपराध करेंगे तो भी 1000 गुना फल। लेकिन मायापुर जो है ये उदार धाम है। तो ही राधा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। तो इधर महाप्रभु बहुत उदार है, बहुत दयालु है, नित्यानंद प्रभु। तो जो रागात्मिका भक्त हैं वो राधा रानी के आश्रय में रहते हैं, और जो रागात्मिका भक्त नहीं है, साधना भक्ति है, वो नित्यानंद प्रभु के आश्रय में रहते हैं। समझ में आ रहा है? तो श्री गुरुदेव जो है, श्री गुरुदेव राधा रानी और नित्यानंद प्रभु दोनों के प्रतिनिधित्व करते हैं। समझ में आ रहा है? श्री गुरुदेव जो है राधा रानी और नित्यानंद प्रभु दोनों के प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जो अनर्थ निवृत्ति क्रॉस कर गए हैं या रागात्मिका भक्त, रागानुगा भक्त हैं, राग मार्ग के भक्त हैं, वो राधा रानी के आश्रय में रहते हैं। श्री गुरुदेव के माध्यम से राधा रानी के आश्रय में रहते हैं। और जो अनर्थ निवृत्ति स्तर अभी पार नहीं किया है, वो श्री गुरुदेव के द्वारा किनके आश्रय में रहते हैं? नित्यानंद प्रभु के आश्रय में रहते हैं। तो नित्यानंद प्रभु नित्य आनंद प्रदान करते हैं।
कृष्ण प्रेम, गौर प्रेम प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार हमें किस प्रकार ब्रज में वास करना चाहिए, या ये जो उपदेशामृत के जो सार श्लोक है, 8 नंबर श्लोक जो है, इसको कैसे अपने जीवन में प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारे स्थिति के अनुसार, वो हमें समझना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार तिष्ठन ब्रजे तदनुरागी जनानुगामी, इस प्रकार हम लोग ब्रज में वास कर सकते हैं, उसके बारे में श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखा है। तो ब्रज में वास करने के मुख्य उद्देश्य हैं भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, और ज्यादा से ज्यादा हम लोग श्रवण करें, स्मरण करें और उस प्रकार काल व्यतीत करें। तो इस प्रकार कृष्ण स्मरण जन्म चास्य पृष्ठम निज समिहितम तत्तत् कथा प्रचासो ऊर्जात वासम ब्रजे सदा। ब्रज में कैसे वास करना चाहिए? कृष्ण स्मरण जन्म चास्य पृष्ठम निज समिहितम। तो कृष्ण स्मरण और तत्त कथा रतो चाश्चो, कृष्ण कथा और कृष्ण स्मरण करने के लिए सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण छात्र ही तद्भाव लिप्सुना कार्या ब्रोजा ब्रज लोकानुसारतः। तो सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण छात्र ही। ব্রজভূমিতে বিশেষ কোন কৃষ্ণ পার্শ্বদের অনুগত্যে তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে ব্রজবাসীদের ভাব নিয়ে শ্রী ভগবানের সেবা করতে হয়। এই পথ সাধারণ অবস্থায় প্রযোজ্য, সিদ্ধ অবস্থাতে প্রযোজ্য। অর্থাৎ মায়াবদ্ধ অবস্থায় এই ভাবে কৃষ্ণ অনুসরণ করা যায় এবং মায়ামুক্ত অবস্থাতেও। ভগবত প্রাপ্তির পরও সিদ্ধ পুরুষেরা এইভাবে ভগবত ভজন করতে পারে। শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করে লিখেছেন যে যার চিত্তে কৃষ্ণ ভক্তির উদয় হয়নি তার উচিত সব রকম জড় কলুষ ত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত নাম, রূপ, গুণ, পরিকর স্মরণ এবং কীর্তন করা এবং এইভাবে বৈদিক ভক্তির অনুশীলন করে মনকে শিক্ষিত করা। এই রূপে কৃষ্ণ তত্ত্বে রুচির উন্মেষ হলে বৃন্দাবনে বাস করা উচিত এবং একজন নিপুণ ভক্তের অধীনে সবসময় কৃষ্ণ নাম, কৃষ্ণ যশ, কৃষ্ণ লীলা, কৃষ্ণ গুণাদি স্মরণ করে কালাতিপাত করা উচিত। भगवत सेवा अनुशीलनेर यही হচ্ছে सार कथा। तो जिनके हृदय में स्वाभाविक कृष्ण भक्ति का उदय नहीं हुआ उनको क्या करना चाहिए? पहले सारे भौतिक अभिलाषाओं को परित्याग करके भगवान श्री कृष्ण के नाम, रूप, लीला या परिकर उनके पार्षदों को स्मरण और कीर्तन करना और वैदिक भक्ति का अनुशीलन करने के द्वारा मन को शिक्षित करना। मन और इंद्रियों को पहले शिक्षित करना पड़ेगा और फिर इस प्रकार जब कृष्ण तत्व में रुचि का उन्मेष होगा तब वृंदावन में वास कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसलिए हमें पहले साधना भक्ति का अनुशीलन करना चाहिए और जब हमें साधना भक्ति का अनुशीलन करके हम लोग अनर्थ निवृत्ति स्टेज या अनर्थ बहुत कम हो जाएगा, हम लोग सभी नियमों को पालन कर रहे हैं और हमारे हरि कथा, हरि नाम, कृष्ण सेवा में रुचि है, तब हम लोग ब्रज में वास कर सकते हैं। तो दूसरे शब्दों में श्रील प्रभुपाद सभी भक्तों के लिए वृंदावन धाम का विस्तार किया है।
तो अगर आप किसी भी स्थान पर रहकर किसी भी स्थान पर रहकर अगर आप भगवान के शिव विग्रह के आश्रय में भक्तों के संगति में ये जो उपदेशामृत के 8 नंबर श्लोक का अनुशीलन करते हैं तो आप वृंदावन में वास कर रहे हैं। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि अपने घर को या आप जिस स्थान पे रहते हैं वॉइस या हॉस्टल या जिस स्थान को, उस स्थान को वृंदावन बनाना। तो और तीसरा पॉइंट था कि हमें तिष्ठान ब्रजे तदनुरागी जनानुगामी, भगवान के जो पार्षद हैं उनके जन अनुगामी, उनके पद चिन्ह पे चलना, उनके शिक्षाओं या उनके निर्देश के अनुसार उनके पद चिन्हों पे चलना, उनके शिक्षा और निर्देश के अनुसार चलना। तो रूप गोस्वामी पाद शुद्ध भक्ति के जो डेफिनेशन दिया है, शुद्ध भक्ति के जो डेफिनेशन है, शुद्ध भक्ति के जो संज्ञा है, तो उसमें बताते हैं कि सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परित्रन निर्मलम ऋषिकेश ऋषिकन सेवनम भक्ति रुच्यते। और एक श्लोक है अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञानो कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येनो कृष्णानुशीलनम। अनुशीलन, तो अनु शब्द का अर्थ है अनुगमन करना। तो आप भक्ति कर रहे हैं, वैदिक भक्ति का सभी एक्टिविटी आप फॉलो कर रहे हैं, लेकिन किसी भक्तों के या विशेष करके जो शुद्ध भक्तों के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं तो शुद्ध भक्ति भी काउंट नहीं होगा। समझ में आ रहा है? केवल एक्टिविटी फॉलो करने से शुद्ध भक्ति नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम लोग शुद्ध भक्तों के पद चिन्हों पे, शुद्ध भक्त के आश्रय में, उनके आदेशों के अनुसार हमारे जीवन को आगे लेके जाना। जब हम लोग उसको करेंगे तब क्या होगा, हमारे हृदय के जो अनर्था है, कल्मश है, अहंकार है, वो नष्ट होगा। तो अनुकूल्येनो कृष्णानु, अनुकूल्येनो मतलब कृष्ण के संतुष्टि के लिए या कृष्ण के शुद्ध भक्तों के संतुष्टि के लिए। अनुकूल्येनो, प्रतिकूल भक्ति, अनुकूल भक्ति, कम सभी कृष्ण के स्मरण कर, लेकिन किस भाव से? प्रतिकूल भाव से। तो प्रहलाद महाराज भगवान के स्मरण कर रहे थे अनुकूल भाव से। तो अनुकूल अर्थात कृष्ण की संतुष्टि के लिए, कृष्ण के सुख के लिए, कृष्ण या गुरु के सुख के लिए। तो अनुकूल्येनो कृष्णानुशीलनम, कृष्णानुशीलनम। तो शीलनम मतलब एक्टिविटी, प्रैक्टिस, इसका अलग अलग अंग होगा। भक्ति मतलब केवल भावुकता नहीं है, भक्ति मतलब एक प्रैक्टिस, इसमें भक्ति का अलग अलग अंग होता है। भक्ति कोई निष्क्रिय नहीं है, भक्ति सक्रिय है। भक्ति में हम लोग भगवान के अलग अलग प्रकार की सेवा करते हैं। जैसे अभी हम लोग भगवान की कथा सुन रहे हैं, फिर आप सुबह उठ के भगवान का नाम का जप करते हैं, भगवान का वाणी का प्रचार करते हैं, भगवान के लिए रसोई करते हैं, भगवान के मंदिर मार्जन करते हैं, भगवान के बर्तन सफाई करते हैं। तो ये सभी भक्तिमय सेवा। तो जितना हमें सेवा भाव जागृत होगा उतना हम लोग भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत बार हम लोग सेवा जो है अपने क्योंकि अथॉरिटी ने दिया है इसलिए कर रहे हैं, या इच्छा नहीं है करना पड़ेगा इसलिए कर रहे हैं। तो उसमें हमारे शरीर एंगेज है लेकिन मन और हृदय एंगेज नहीं है। तो
क्योंकि हम सोच रहे हैं मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ, मेरे को उसने बोला इसलिए काम कर रहा हूँ, मैं इसके लिए क्यों करूंगा, उसके लिए क्यों करूंगा। लेकिन हम लोग नहीं सोच रहे हैं कि नहीं, सेवा मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, या श्री गुरुदेव या श्री प्रभुपाद उनके कृपा से मेरे को सेवा प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कनेक्शन, हमारे जो इंटरनल कनेक्शन, तिष्ठन ब्रजे तद अनुरागी, क्यों ब्रज में रह सकते हैं पर कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्टेइंग इन वृंदावन धाम। एक बार श्री श्रीमद राधानाथ स्वामी महाराज के एक शिष्य था, तो मंदिर में कुछ उनका समस्या हुआ था, मंदिर छोड़ के ब्रज में चला गया, वृंदावन चला गया, और महाराज को चिट्ठी लिखा कि मैं वृंदावन में राधा कुंड में भजन कर रहा हूँ, साउंड कम कर दो। तो महाराज ने उनको चिट्ठी में लिखा कि हरे कृष्ण, ठीक, और कम करो, हरे कृष्ण, के गुरु और वैष्णवों के आशीर्वाद के बिना कोई ब्रज में अगर जाता है तो उनको भगवान का दर्शन नहीं होता है। गुरु और वैष्णवों के आशीर्वाद के बिना अगर कोई व्यक्ति ब्रज में जाता है, राधा कुंड में भजन करेगा, लेकिन राधा कुंड में बैठ के भी उनको कृष्ण की चिंतन, कृष्ण के स्मरण नहीं होगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग भक्ति के जो हमारे मन और इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियुक्त कर रहे हैं, और हमारा कनेक्शन सही है, गुरु परंपरा से हमारा कनेक्शन, या गुरु के पद चिन्हों पे जो चल रहे जो भक्त लोग, हमारे इमीडिएट डिवोटीज, या जिस भक्तों के संग में हम लोग रह रहे हैं, तो ऐसे भक्तों में जो भक्त लोग श्री गुरुदेव के आदेशों का पालन कर रहे हैं, श्री गुरुदेव के पद चिन्ह पे चल रहे हैं, ऐसे भक्तों से जुड़े रहना, जो हमें गुरुदेव या प्रभुपाद या पूर्वतन आचार्यों के साथ जुड़ने में मदद कर रहा है। तो स्निग्धो सजातीयो, रसिक भक्तों का संग करना चाहिए। स्निग्ध जो भक्ति में पवित्र है, सजातीयो मतलब उसी प्रकार का भक्तों का संग लेना चाहिए जैसे शास्त्र में बताया गया है। जो भक्त लोग गुरु ये उपदेशामृत के आदेशों का पालन कर रहे हैं, इस्कॉन में या भक्तों संघ में बहुत सारे भक्त अलग अलग मोटिव लेके आते हैं। तो और वो गुरु और कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए प्रयास नहीं कर रहा होगा। तो इसलिए सही तरीके से कनेक्टेड रहना बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए तिष्ठन ब्रजे तदनुरागी जनानुगामी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। तो अभी जो पार्ट बचा है मैं जस्ट उसको कवर कर देता हूं। तो इसको तो इसको कहते हैं तद अनुरागी जनानुगामी, या
अनुकूलेन कृष्णानु अनु 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 का अनुशीलन। अनुशीलन, अनु शब्द का अर्थ है अनुगमन करना, गमन करना। अनुगमन करना मतलब पीछे पीछे चलना, उनके पद चिन्हों पे चलना। वो जिस प्रकार भक्ति किए हैं, नकल नहीं करना चाहिए, लेकिन पद चिन्ह अनुसरण करना चाहिए। अनुसरण और अनुकरण, अनुकरण नहीं करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। अतः उन्होंने जो सार बताया है, उनके जीवन का जो सार है, जिस प्रकार वो आगे, जैसे हमारे गुरु महाराज लोग जो कर रहे हैं, उसको अगर हम लोग नकल करने के लिए प्रयास करेंगे तो फिर तो हम लोग हम लोग को ढूंढ के नहीं मिलेगा। लेकिन वो क्या प्रयास कर रहे हैं? प्रभुपाद को संतुष्ट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु मिशन को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, आचार और प्रचार कर रहे हैं। तो इस प्रकार तो हमें भी वो जो है, हमें उसको हमारे स्थिति में रहकर, हमारे स्थान जिस स्थान में है उसको रहकर हमें उसको पालन कर, उसको करने के लिए प्रयास करना चाहिए। इसको कहते हैं अनुसरण। समझ में आ रहा है? अनुसरण। तब इधर तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो पहला उपदेश दिया गया है कि भगवान की कथा श्रवण करना चाहिए। प्राथमिक अवस्था में भक्तों को हमेशा भगवान की कथा को सुनना चाहिए। तो इस अवस्था का नाम है श्रवण दशा। श्रवण दशा। तो जब कोई व्यक्ति अविराम, हमेशा ज्यादा से ज्यादा कृष्ण के अप्राकृत नाम, रूप, गुण, लीला, परिकर श्रवण करते रहते हैं, हमेशा समय नष्ट नहीं करते हैं, नाम गाने सदा रुचि, अव्यर्थ कालोत्तम, नाम गाने सदा रुचि। तो जो भक्त लोग अपने ज्यादा से ज्यादा समय बचाकर भगवान की कथा श्रवण, प्रभुपाद जी किताबों का अध्ययन, भगवान के नाम का कीर्तन, प्रचार, इसमें निमग्न रहते हैं जब भक्त, तो उसको कहते हैं वरण दशा। श्रवण दशा, वरण दशा। तो कोई व्यक्ति शायद 16 माला जप कर रहा है, लेकिन या नहीं कर रहा है, या श्रवण या शास्त्र का अध्ययन ठीक से नहीं कर रहा है, बहुत समय इधर उधर वेस्ट कर रहा है, या दूसरे बहुत सारे चीज हैं उसके साथ साथ भी सुन रहा है, हरि कथा भी सुन रहा है और बाकी जो भौतिक जगत के अलग अलग प्रकार के न्यूज और पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, मूवी, ये सब भी सुन रहे हैं। तो उसमें क्या होगा, जो श्रवण करने के द्वारा उनकी शुद्धिकरण नहीं होगा, शायद होगा लेकिन कम होगा, क्योंकि उसके साथ भी बहुत गंदा चीज भी घुस रहा है अंदर में, भौतिक विषय भी घुस रहा है। इसलिए श्रवण दशा से वरण दशा प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो এই অবস্থায় কৃষ্ণ কথা গ্রহণ করার মতো मानसिक अवस्था लाभ करें। तो तब उनके मन जो होता है, हमेशा श्रवण करने के द्वारा उनके मन जो होता है कृष्ण कथा सुनने के लिए और फेवरेबल होता है, मन और फेवरेबल होता है। तो श्रवण दशा, पहला है श्रवण दशा, उसके बाद है वरण दशा। तो जिनका वरण दशा प्राप्त हुआ है वो कृष्ण कथा में उनको कृष्ण कथा अच्छा लगेगा उनको। ऐसे हम लोग वरण दशा और श्रवण दशा में क्या फर्क है? श्रवण दशा मतलब एज ए फॉर्मेलिटी सुन रहे हैं या
सुनने की इतना इच्छा नहीं है। जब क्लास में तब लगता है कब खत्म होगा क्लास खत्म होने के बाद हम दूसरी जगह में जाके थोड़ा मोबाइल में थोड़ा सा चैटिंग करेंगे, थोड़ा जाके वो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, थोड़ा और मतलब उनको थोड़ा रेस्ट चाहिए, स्पिरिचुअल लाइफ से थोड़ा रेस्ट चाहिए। दूसरा चीज कृष्ण कथा भी थोड़ा उनको तीता लग रहा है, मेडिसिन के जैसा, समझ में आ रहा है। लेकिन जो इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, अनुशीलन कर रहा है अच्छे से, उनको तो ज्यादा से ज्यादा सुनने का मन है, श्रद्धा है, भक्तों के प्रति श्रद्धा है, हरि कथा पे श्रद्धा है, तो ज्यादा से ज्यादा सुन रहा है। तो इसके द्वारा क्या होगा, उनके मन पवित्र होगा, मन में जितना भी कल्मश है वो धीरे धीरे गायब हो जाएगा। छिन्नताम स कथा कृष्णम पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयन्तस्थ हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत् सताम। छिन्नताम स कथा कृष्णम, भगवान की कथा श्रवण करने के द्वारा क्या होगा, हृदयन्तस्थ हि अभद्राणि, हृदय की जितनी भी अभद्रता है, विधुनोति सुहृत् सताम, भगवान उसको साफ करते, धूल धो देते हैं। और तब क्या होगा, आत्मा के ऊपर जो कल्मश है, अपवित्रता है, वो हट जाएगा, धीरे धीरे हट जाएगा। और फिर क्या होगा, तो कृष्ण कथा को स्वीकार करना चाहिए, कृष्ण कथा और सुनना चाहेगा, और कृष्ण की आश्रय लेना चाहेगा, और कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना चाहेगा। इसको कहते हैं वरुण दशा, समझ में आ रहा है। कृष्ण कथा और अच्छा लगने लगेगा उनको, तो भक्तों के संग में और आना चाहेगा, कृष्ण के बारे में और जानना चाहेगा, कृष्ण के लीला, कृष्ण के रूप और अच्छा लगेगा उनको। और इस प्रकार उत्साह बढ़ रहा है, और समझ में आ रहा है, और उत्साह उनको बढ़ रहा है, इसको कहते हैं वरुण दशा। तो वरुण दशा में कृष्ण कथा और उनको अच्छा लगेगा, इसको कहते हैं रुचि, अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि। तो इस अवस्था में जब वो कृष्ण कथा सुनने लगता है, अच्छा लग रहा है और सुनने लगता है, और अच्छे भक्तों से सुन रहा है, और ज्यादा से ज्यादा सुन रहा है, और नया नया कृष्ण के बारे में जानकारी प्राप्त हो रहा है, तो तब क्या हो रहा है, और उनको अच्छा लगने लगता है। इस प्रकार धीरे धीरे उनको कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, कृष्ण लीला में आसक्ति उत्पन्न होता है। इसको कहते हैं स्मरण दशा, इसको कहते हैं स्मरण दशा। तो रुचि फिर आसक्ति। तो इस प्रकार जब कृष्ण कथा श्रवण करने के द्वारा अच्छा लगता है, और फिर कृष्ण कथा श्रवण करने के द्वारा जब उनको कृष्ण कथा में आसक्ति उत्पन्न होता है, तो तब वो क्या होता है, उनको कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन में वो भावाविष्ट होते हैं। कृष्ण कथा सुनते सुनते वो और तन्मयता प्राप्त होता है, और उसमें एब्जॉर्प्शन आता है, एब्जॉर्प्शन, उसमें भाव प्राप्त होता है, स्मरण प्राप्त होता है। तो जब डीपली वो उसमें डूब जाता है, जैसे बहुत बार हम लोग देखते कि हम लोग कुछ क्लास सुनते तो वो इतना अच्छा लगता है, तो हमें क्लास में वो डूब जाते हैं, और फिर जब क्लास खत्म हो जाता है पता चलता है। तो इसको कहते हैं स्मरण दशा, स्मरण दशा। अभी स्मरण के 5 स्टेज है, ठीक है। तो श्रवण के 3 स्टेज हो गया, श्रवण दशा, वरुण दशा, स्मरण दशा, ठीक है। श्रवण दशा, ये जो भाव प्राप्त होता है, स्मरण, कृष्ण कथा श्रवण करके जो भाव स्तर, एब्जॉर्प्शन प्राप्त, इस अवस्था में आत्मा शुद्ध हो जाता है। तो ये सबसे ऊंचा स्टेज है। अभी स्मरण दशा में, स्मरण दशा के 5 स्टेज है, स्मरण, धारणा, ध्यान, अनुस्मृति, समाधि।
स्मरण, धारणा, ध्यान, अनुस्मृति, समाधि। प्राथमिक अवस्था को कहते हैं, स्मरण के प्राथमिक अवस्था को, कृष्ण स्मरण को प्राथमिक अवस्था कहते हैं, स्मरण दशा। तो ये जो स्मरण है अभी ये कंटिन्यूअस स्मरण नहीं है, बीच बीच में वो ब्रेक हो रहा है। तो कृष्ण का स्मरण भी हो रहा है और भौतिक चीज का भी स्मरण भी हो रहा है। अपने ड्यूटीज, अपने भौतिक इच्छाएं, अपने परिवार, पैसा, या उसका भी स्मरण हो रहा है। तो उस चीजों में उनको कृष्ण का संबंध अनुभव नहीं हो रहा है। उनके भौतिक चीजों के साथ कृष्ण के संबंध का अनुभव नहीं हो रहा है। इस प्रकार स्मरण जो होता है बेहद हो रहा है, मतलब स्मरण जो होता है ब्रेक होता है। तो लेकिन जब भक्त निष्ठा के साथ उपदेशामृत के जो 8 नंबर श्लोक अच्छे से पालन करने के लिए प्रयास करते हैं, कोई भक्तों के अनुगत्य में श्रवण कीर्तन का जो अंग है, वैदिक भक्ति, हर दिन भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम अच्छे से करते हैं, और बाकी समय में भगवान की सेवा में ज्यादा से ज्यादा नियुक्त रहने की प्रयास करते हैं, और जितना बाकी समय मिलता है उसमें वो श्रवण कीर्तन करने की प्रयास करते हैं। तो उसके द्वारा क्या होता है, ये जो स्मरण है वो कंटिन्यू होता है। जो ब्रेक हो रहा था वो और बढ़ता है। तो उसको कहते ध्यान, और बढ़ता है। तो स्मरण, धारणा, ध्यान। तो अभी जब मतलब ध्यान मतलब मन कृष्ण में लगा हुआ रहता है, कृष्ण की स्मरण हो रहा है ज्यादा, कृष्ण के चिंतन हो रहा है ज्यादा, या सभी चीजों में कृष्ण का दर्शन हो रहा है। कोई चीज जैसे प्रसाद खाते हैं हम लोग, मगर हम लोग उसको क्या कौन सा सब्जी उसके हिसाब से खाते हैं, पनीर सब्जी या पास्ता या गुलाब जामुन, कृष्ण प्रसाद के स्मरण नहीं होता है उसमें। गुलाब जामुन खा रहा हो, वो चेतना ज्यादा रहता है प्रसाद से, है ना। उसी प्रकार जब हम लोग परिवार चलाते हैं, उसमें हमारा परिवार, मेरा पैसा, मेरे को ज्यादा पैसा कमाना है, मेरे लिए जरूरत है, बीवी के लिए जरूरत है, बच्चे के पढ़ाई के लिए जरूरत है, कृष्ण के लिए मैं पैसा कमा रहा हूँ, कृष्ण की संसार है, सब कुछ कृष्ण का है, ये स्मरण नहीं रहता है। एक्टिविटी सेम लेकिन चेतना अलग है। समझ में आ रहा है? कार्यकलाप एक ही है लेकिन चेतना अलग अलग है। उसी वक्त हम लोग रसोई कर रहे हैं, उसमें शायद हम लोग या कोई सेवा कर रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं, या डीटी वर्शिप कर रहे हैं, उसमें आई सेंटर्डनेस मतलब क्या कहते हैं, आत्मकेंद्रित विचार, या हमें करना पड़ेगा, क्यों मेरे को दे दिया, या ये सब चेतना ज्यादा है, कृष्ण की स्मरण कम है। समझ में आ रहा है? लेकिन जब हम लोग श्रवण कीर्तन या श्री गुरुदेव के निर्देश के अनुसार हमारा साधना भक्ति का, समझ में आ रहा है, कृष्ण सर्वाकर्षक है।
लेकिन अनर्थ रहने के कारण, जैसे हरिनाम बहुत क्या कहते हैं, मीठा है, गन्ने का रस बहुत मीठा है, लेकिन जो जॉन्डिस हुआ है उनको अच्छा नहीं लग रहा है, उनको तीता लग रहा है। तो शुरू में मेडिसिन के जैसा, मेडिसिन के अभी जिनको जॉन्डिस हुआ है उसका मेडिसिन क्या है, गन्ने का रस ही मेडिसिन है। तो उसको लेते रहना पड़ेगा, लेते जो जितना बीमारी कटेगा उतना रुचि प्राप्त होगा, स्वाभाविक स्वाद वापस आ जाएगा, धीरे धीरे आएगा। इसलिए गुरु डॉक्टर है, हरिनाम मेडिसिन है। तो डॉक्टर और मेडिसिन दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। और कहां पर करना है, भक्तों के सामने। तो इस प्रकार कृष्ण स्मरण ध्यान जब अविराम होगा, स्मरण जब अविराम होगा, जितना भरेगा तो हर चीज में कृष्ण की स्मरण होगा। कोई भी आश्रम में रह के कर सकते हैं, अगर वो इस उपदेशामृत के सार श्लोक और अच्छे भक्तों के आश्रय में वो भक्ति का अनुसरण करते हैं, तो तब क्या होगा, ध्यान अविराम होगा। तो जब अविराम होगा उसको कहते हैं अनुस्मृति। और अनुस्मृति जब और इंटेंसिफाई होता है, अनुस्मृति जब 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 ब्रेक नहीं होता है, तब उसको कहते हैं समाधि। तो स्मरण दशार এই চরম অবস্থায় বা পূর্ণ সমাধিতে তার স্বরূপ, জীবাত্মার স্বরূপ উপলব্ধি হয়। জীব তার নিত্য কৃষ্ণ দাসত্ব পূর্ণ ও নিশ্চিত ভাবে উপলব্ধি করতে পারে। এই অবস্থার নাম संपत्ति दशा। तो ये जो स्मरण दशा में, स्मरण दशा की अंतिम स्टेज है समाधि, इधर हमेशा वो कृष्ण कॉन्शियस है, हर चीज वो कृष्ण के लिए कर रहे हैं। तो इस अवस्था में उनकी बद्ध अवस्था जो है वो नष्ट हो जाता है और उनके स्वरूप, उनके जो स्वरूप है वो कृष्ण के साथ जो उनके नित्य शाश्वत संबंध है उसका अनुभव होता है। समझ में आ रहा है? इसको कहते हैं स्वरूप सिद्धि। सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही। तो साधक अवस्था और सिद्ध अवस्था, तो हम लोग अभी साधना भक्ति कर रहे हैं, साधक भक्त हैं। तो साधक अवस्था से हमारा लक्ष्य क्या है, सिद्ध अवस्था प्राप्त करना। ये जो उपदेशामृत के ये जो किताब है, ये गाइडलाइन है, कैसे साधक भक्त से आप सिद्ध भक्त बन सकते हैं। कंडीशन क्या कहते हैं, नियाफाइड डिवोटी टू प्योर डिवोटी, नियाफाइड डिवोटी टू लिबरेटेड डिवोटी। तो इसलिए इसको कहते हैं संपत्ति दशा। संपत्ति दशा मन को उनको जो कृष्ण प्रेम रूपी संपद है उनको प्राप्त होता है। तो इस प्रकार इस अवस्था में उनको इस भौतिक जगत के माया का डर नहीं होता है, क्योंकि वो अनर्थ से मुक्त हो गया है। तो वो कृष्ण भावना में सारे अनर्थ से मुक्त होने के कारण अपने असली स्वरूप कृष्ण के दास के रूप में अपने स्वरूप उपलब्धि करने के कारण उनके लिए कोई माया नहीं होता है। कौन सा माया वो जानते हैं, लेकिन माया का कोई प्रभाव उनके ऊपर नहीं होता है। तो और हम हर स्थान में कृष्ण की दर्शन करते हैं। और कृष्ण की हर चीज किस प्रकार कृष्ण की संतुष्टि के लिए है, कृष्ण की सेवा के लिए है, वो दर्शन करते हैं। और इस प्रकार वो हर जगह में कृष्ण की दर्शन करते हैं। स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति,
सर्वत्र है तार इष्ट देवे स्फूर्ति। और इस प्रकार हमेशा वो दिव्य आनंद में रहते हैं, तो सारे भौतिक अभिलाषा से मुक्त रहते हैं। तो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मत् भक्ति लभते पराम। तो ब्रह्मभूत प्रसन्न हमेशा प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि उनकी चेतना से सारे अनर्थ मुक्त हो गए, हमेशा कृष्ण के स्मरण हो रहा है। ठीक है। तो आशा करते आप लोगों को समझ में आया। जितना मेरा योग्यता है उतने अनुसार मैं एक्सप्लेन कर पाया। तो आप लोग इस तात्पर्य को और अच्छे से पढ़िएगा तो और आपको समझ में आएगा। तो इस प्रकार कनिष्ठ अधिकारी भक्त जो है, अगर भौतिक अभिलाषा को त्याग करके ये वैधि साधना भक्ति या रागानुगा साधना भक्ति शास्त्र के निर्देश के अनुसार अगर अनुशीलन करते हैं तो अगर सद्गुरु या भगवान के कोई पार्षद है उसके अनुगत्य में, गुरु परंपरा के अनुगत्य में अगर ये उपदेशामृत के 8 नंबर श्लोक जो है श्रवण कीर्तन की जो पद्धति है इसका अनुशीलन करते हैं ज्यादा से ज्यादा 4 नियम पालन करने के साथ साथ, तो तब क्या होगा? तो कृष्ण को प्राप्त करने के लिए तब क्या होगा? धीरे धीरे वो साधक भक्त से सिद्ध अवस्था या अनर्थ निवृत्ति जो स्तर है उसको पार करके रुचि, आसक्ति भाव और प्रेम, तो ये श्रवण दशा, स्मरण दशा, वरण दशा, स्मरण दशा, स्मरण दशा के जो अलग अलग स्तर है, स्मरण, धारणा, ध्यान, अनुस्मृति, समाधि, इसको प्राप्त कर सकते हैं। और कंटिन्यूअस कृष्ण कॉन्शियस, हर समय कृष्ण कॉन्शियस। समाधि का मतलब ही नहीं कि समाधि में बैठा हुआ है, समाधि मतलब हमेशा कृष्ण की चिंतन कर रहे हैं, हमेशा कृष्ण के लिए सब कुछ कर रहे हैं, कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, कृष्ण सेवा। तो पूर्ण रूप से कृष्ण चेतना में है, कृष्ण के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो अनर्थ से मुक्त हो गया है। कोई भी अपने इंद्रिय भोग के लिए नहीं यूज करते या सोचते हैं, विचार करते हैं। तो इसलिए हमें अच्छे भक्तों के आश्रय में भक्ति का अनुशीलन करना चाहिए, जिससे हम लोग अनर्थ को छोड़ने की, अनर्थ को त्याग करने की, अनर्थ के साथ लड़ाई करने की शक्ति प्राप्त होगा। अनर्थ निवृत्ति और अर्थो प्रवृत्ति, ये दोनों साइमल्टेनियसली होना चाहिए। अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ को छोड़ने की, अनर्थ के साथ लड़ाई करने की, अनर्थ को त्याग करने की, और अर्थ प्रवृत्ति, और भगवान के प्रति जो प्रेममय संबंध है उसको जागृत करने की प्रैक्टिस, दोनों पैरेलली चलना चाहिए। तो जितना भक्ति में आगे बढ़ेगा अनर्थ कम हो जाएगा, अर्थ, भगवान के साथ हमारा जो संबंध स्वरूप वो और ज्यादा से ज्यादा प्रकट होगा, और पूर्ण अवस्था में अनर्थ से मुक्त है, केवल अर्थ प्रवृत्ति चलता रहेगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया। इस प्रकार एक साधक भक्त सिद्ध भक्त बन सकता है, या अनस्टेडी डिवोशन टू स्टेडी डिवोशन। कुछ दिन पहले हम लोग टॉपिक लिया था, अनस्टेडी भक्त डिवोशन टू स्टेडी डिवोशन। अनस्टेडी से स्टेडी डिवोटी बन सकते हैं। ओके, कोई प्रश्न है? ऑनलाइन से?
हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी। मेरा प्रश्न था, कृतिका माता जी से बात किए, मेरा प्रश्न सॉल्व कर दिए माता जी। हरे कृष्णा, हरि बोल, बहुत अच्छा। कृतिका माता जी सभी माताजियों का टेक केयर कर रही हैं, सभी माताजियों के माता जी है। हरे कृष्ण। और Yes. मेरे प्रभु जी क्लास ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं है, नहीं करना चाहते हैं क्लास ज्वाइन। ओह, ठीक है, मैं प्रभु जी से बात करता हूँ। 2 माला जप करते हैं, जप भी नहीं बढ़ाते हैं। ओके, ठीक है। और क्लास आप ज्वाइन करने कंटिन्यू में रखिए, कतराते हैं। आप कंटिन्यू रखिए और धीरे धीरे आपके प्रभु जी भी प्रभु जी को उत्साह देते रहिए, ठीक है। आप छोड़िए मत, आपका जो प्रभु जी को भक्ति में लाने का प्रयास, उसको मत छोड़िए। जैसे प्रभु जी हम अधिकतम 35-36 माला जप करते हैं, क्या अच्छा है? हाँ, अच्छा है, एकदम अच्छा है। और प्रभु जी की किताब भी पढ़िएगा। उपदेशामृत पढ़कर खत्म कर दिए, फिर से इसको दोहरावे। हाँ, पढ़ सकते, फिर से पढ़ सकते। ठीक है प्रभु जी, ठीक है। दीक्षा के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या क्या साधन करना पड़ेगा? इसके लिए थोड़ा अंदर से तैयार होंगे। जो करना चाहिए वो कर रहे हैं, आप ऑलरेडी कर रहे हैं। पहले दीक्षा के लिए पहले आश्रय लेना पड़ता है, सदगुरु का आश्रय लेना पड़ता है, और आश्रय लेके हमें ये जो भक्ति के जो अलग अलग अंग हैं उसको और अच्छे से हमें पालन करना पड़ता है। मंगल आरती करना चाहिए, घर में भगवान की पूजा करना चाहिए, भगवान को भोग लगा के प्रसाद लगाना चाहिए, हमें प्रसाद छोड़ के दूसरा कुछ खाना नहीं चाहिए, और 16 माला का जप कम से कम हर दिन करना चाहिए। ये तो करते हैं, ये तो लगभग 2 साल से कर रहे हैं प्रभु जी। जो किताब मैंने बोला है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। जो किताब अपने भागवत गीता, उपदेशामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, और कोई छोटी छोटी किताब में जो बोला है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। और ईशोपनिषद, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा, ये सब कंप्लीट करना पड़ेगा। हाँ तो माता जी बोले क्या, कृतिका माता जी पहले पतला पतला वाला किताब पढ़िए, उसके बाद फिर मोटा वाला पढ़िएगा। हाँ हाँ, तो कुछ कुछ पतला किताब जो मैंने कहा है उसको कंप्लीट कर लीजिए, फिर कंप्लीट हो जाएगा फिर मेरे को बताइए कौन सा किताब हो गया है ना। कृष्ण की और पढ़कर खत्म किए, फिर रसामृत पढ़ रहे थे, तो फिर आप बोले उपदेशामृत पढ़ने के लिए, भक्ति रसामृत पढ़ रहे थे तो फिर आप बोले उपदेशामृत पढ़ने के लिए, तो फिर एक बार इसको खत्म कर दिए पढ़ के, तो फिर इसको दोहरावे। हाँ, इसको एक्चुअली थोड़ा दोहराएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप तो मतलब क्लास में नए नए ज्वाइन किया है, तो एक बार पढ़ लेंगे तो आपके लिए और गहराई से समझ में आएगा। ऐसे प्रभु जी दीक्षा के लिए थोड़ा सजेशन दे देते, क्या क्या उसमें साधन करना पड़ा, थोड़ा अंदर से तैयार होते। नहीं, आप कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं। एक बार मेरे को आपसे पर्सनली बात करना पड़ेगा, है ना। ठीक है प्रभु जी, प्रयास तो बहुत किए लेकिन नहीं बात हो पाया आपसे। हाँ, आपने 2 बार फोन किए थे, तो उस समय मैं बिजी था, तो मैं बाहर में था, हल्दिया गया था मैं, तो इसलिए बात नहीं हो पाया था। मैं ऑनलाइन डिवोटीज के लिए एक सेपरेट काउंसलर मीटिंग लूंगा, तो उसका डेट मैंने मतलब सोच के, जितने भी ऑनलाइन डिवोटीज हैं, ऑफलाइन डिवोटीज का तो काउंसलर मीटिंग सुविधा मतलब हो जाता है, तो ऑफलाइन डिवोटी ऑनलाइन डिवोटी का मैं सेपरेट करूंगा। तो उसमें जैसे हम लोग चर्चा किए थे पहले, तो उसमें आप लोग का क्वेश्चन जो है एड्रेस होगा।
ठीक है प्रभु जी, जैसे आप बोलते हैं कि किसी मतलब कृष्ण भक्त के सजेशन पर चलते रहिए, इसीलिए आप से बात करना चाहते थे क्या गलत क्या सही हो रहा है। थोड़ा जो साधना रिपोर्ट भेजते हैं उसमें मैं सभी भक्तों का साधना रिपोर्ट हर दिन देखता हूँ और उसमें कैसा मेरा भक्ति चल रहा है। मैं देखा आपका साधना रिपोर्ट देखता हूँ हर दिन, तो उस साधना रिपोर्ट के बेसिस पे ही मैं बोला कि आप जो कर रहे मतलब जो दीक्षा लेने के लिए जो करना चाहिए वो आप कर रहे हैं। तो दीक्षा लेने के लिए कम से कम 16 माला जप करना चाहिए, 4 नियमों का पालन करना चाहिए, भगवान को भोग 16 लगाना माला का जप तो हम 2 साल से कर रहे हैं प्रभु जी, और मेरे घर में कुछ काम उम रहता नहीं है तो फिर भर दिन हम जप करते रहते हैं अपना। तो अभी आपको सदगुरु के आश्रय लेकर, गुरु के आश्रय में, जैसे हमने उपदेशामृत में पढ़ा ना, तो पहला है कि हमें भगवान के नाम रूप गुण लीला हमें उसमें श्रवण कीर्तन में हमारे मन और जीवा को नियुक्त करना चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए? नहीं, हमें भगवान के धाम या भक्तों के साथ में या घर को मंदिर बनाना चाहिए। तीसरा है कि हमें तद अनुरागी जनानुगामी, हमें एक प्रामाणिक भक्तों के अनुगत्य में या श्री गुरुदेव के अनुगत्य में हमें भगवान के पार्षद में अनुगत्य में भजन करना चाहिए। तो अभी इसके लिए जो गुरु के आश्रय लेना पड़ेगा, दीक्षा के पहले आश्रय लेना पड़ता है, फिर आश्रय के बाद 6 महीना कम से कम अगर सब नियमों का पालन करते हैं, सभी भक्ति का अंग का पालन करते हैं, फिर 6 महीना होने से आश्रय होगा। फिर 6 महीने के बाद अगर अगला 6 महीना सब कुछ करते हैं, सारे जो क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, तो दीक्षा होता है जी। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए तो सीनियर भक्त से आपसे सजेशन लेना चाहते थे, तो फिर बात नहीं हो पाया। तो कुर्तिका माता जी क्या बोले? अभी मैं दिया सजेशन जी। तो कुर्तिका माता जी मेरे प्रश्न का पूरा उत्तर दिए संतुष्टि के अनुसार, और बोले क्या माता जी आपको यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर हमसे बात कीजिएगा। जरूर। तो ये यही चाहते थे क्या परमोनिक आप जैसे भक्त परमोनिक भक्त है, तो फिर आपके सजेशन के अनुसार चलते रहेंगे तो फिर मेरा भक्ति ग्रोथ करेगा। आपके देख रेख में रहेंगे तो फिर मेरा भक्ति ग्रोथ। आप भक्ति अच्छे से कर ही रहे हैं। क्या बोले? भक्ति अच्छे से कर ही रहे हैं। सुबह में 16 माला पूरा करते हैं प्रभु जी, उसके बाद दिन में फिर 10-10 करके उसको पुराते हैं 36। हाँ, बहुत अच्छा है। जैसे मैंने कहा कि हमारे जीवन का लक्ष्य है भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करना, है ना? जो इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि भगवान के साथ हमारा संबंध जुड़ जाएगा। तो हमें दीक्षा जो है भक्ति की शुरुआत है, तो हमें दीक्षा प्राप्त करके और प्रामाणिक गुरु के आश्रय में और अच्छे से तीव्रता से भक्ति करना चाहिए। तो तीव्रता से भक्ति हमें हमेशा करना चाहिए, दीक्षा के पहले भी, दीक्षा के बाद भी, और भक्ति के शुरू में भी, भक्ति के अंत में भी, क्योंकि लक्ष्य है हमारे भगवान के प्रति प्रेम, भगवान की सेवा करना। तो इसलिए दीक्षा या सदगुरु के जो आश्रय है, दीक्षा एक अनुष्ठान है, एक फॉर्मल अनुष्ठान है जो जरूरी है, लेकिन दीक्षा का उद्देश्य क्या है वो समझना चाहिए। जैसे हम लोग चर्चा करें ब्रज में वास करना चाहिए, लेकिन ब्रज में वास करने का उद्देश्य क्या है समझना चाहिए। अगर कोई ब्रज में वास करता लेकिन वो ब्रज में वास करने के उद्देश्य प्रैक्टिस नहीं करता तो कोई लाभ नहीं है। दूसरे ओर अगर कोई ब्रज में नहीं वास कर रहा है शायद, लेकिन ब्रज में वास करने का उद्देश्य है उसको प्रैक्टिस कर रहा है, तो फिर वो ब्रज में वास कर रहा है। उसी प्रकार किसी को दीक्षा प्राप्त नहीं हुआ लेकिन दीक्षा प्राप्त करके जिस प्रकार भक्ति हो रहे हैं, इसका मतलब है
दीक्षा के लिए योग्य है। समझ में आ रहा है आपको? जैसे तो इसलिए उसको घर में रहते हैं, एक दूसरे के सेंटर पर चलना पड़ता है, तो फिर घर को ही न मंदिर बनाना पड़ेगा, तो फिर मेरा भक्ति हो पाएगा। हाँ, धीरे धीरे करना पड़ेगा, धीरे धीरे करना पड़ेगा। क्योंकि अभी बहुत दूसरे के सेशन पर चलना पड़ता है। अब सेशन देंगे तो फिर कहीं जा पाएंगे, नहीं सेशन देंगे तो फिर नहीं जा पाएंगे। नहीं, सजेशन तो मैं दे रहा हूँ ना। घर से सेशन मिलेगा, जैसे कहीं जाने के लिए, कहीं भक्तों का संग करने के लिए, कहीं घूमने के लिए, तो फिर घर को ही ना मंदिर बनाना पड़ेगा। या हाँ, तो घर को मंदिर तो बना रहे हैं आप। जैसे घर में भगवान का नाम का जप कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। एक दिन मतलब आपके घर में हम लोग को जाना पड़ेगा, तो जाएंगे तो समझ में आएगा घर की स्थिति कैसी है, हम भगवान की सेवा कैसे कर रहे हैं घर में। और ठीक है, फिर आपके प्रभु जी भी और उत्साहित होंगे। और बीच बीच में अगर आप लोग आते रहेंगे तो अच्छा रहेगा, उत्सव में आते रहेंगे तो अच्छा रहेगा, 2-3 महीने में एक बार आएंगे तो अच्छा रहेगा। और हम लोग भी जाएंगे। तो ठीक है प्रभु जी। तो जो कर रहे हैं उसको और अच्छे से करिए। और फिर आपसे एक दिन मैं बात करूंगा, तो मैं देखूंगा अगर 6 महीना सब कुछ हो रहा है तो आप गुरु आश्रय ले सकते हैं। और फिर गुरु आश्रय लेकर फिर और 6 महीने करेंगे तो दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन डिवोटीज का एक मीटिंग लिया जा सकता है, काउंसलर मीटिंग, क्वेश्चन आंसर्स थर्सडे मंडे ओके है क्या? मंडे इवनिंग या थर्सडे इवनिंग? आप लोग थोड़ा कमेंट कर सकते हैं। Monday evening is fine, Prabhuji. बाकी लोग? यस प्रभु। मंडे और कोई? ओके, मंडे ठीक है। मंडे 7 to 7:30, 7:15 ठीक है, 7:15 to 8:45, 8:30, 7:15 to 8:30 ओके। मंडे कुछ नहीं है तो 7:15 to 8:30 मंडे ठीक है। तो ऑनलाइन डिवोटीज का प्रणय प्रभु है क्या? प्रणय प्रभु जो ऑनलाइन फॉलो अप करते हैं निकल गए। ठीक है, मैं ग्रुप में लिख देता हूँ। ओके, हरे कृष्णा। वी एंड हियर। श्रील प्रभुपाद की उपदेशामृत की। अगले वीक में हम लोग 9 नंबर श्लोक पढ़ेंगे, 9, 10, 11। तो और फिर उसके बाद हम लोग ईशोपनिषद शुरू करेंगे। हरि बोल।